moving on, even as protests continue after 3 students lost their lives in that flooded basement in a coaching center, that has reflected the civic apathy in the national capital. It is a follow-up action where 13 more such coaching centers have now been shut down after the authorities inspected them. But the protesting students who say this is not enough, they demand further action. Remember, even as a part of these protests yesterday, many of these students who were also detained. And on that note, I cut across to Piyush, who has been tracking every single development on the ground. Piyush, while 13 more such centers have been shut down, fact is that this is a problem that needs to be corrected in the roots itself. 3 students have lost their lives, and this cannot be taken lightly, and that is why we see protests still raging on. Do tell us the situation on the ground and what can be expected next. Suesha, what I can tell you is that as far as our probe is concerned now, because we have been stationed over here for the last 2 days since the time this unfortunate tragedy occurred, and it seems that MCD might have tried to do a kind of reaction forcefully in trying to seal the 13 centers, but at least now the apprehension and the fear of students still remain, because over here only in Rajendra Nagar, which is considered to be the hub of at least students who want to appear for the UP examinations, you understand that how many more illegal libraries are still operating. And this is operating not only because of the selfishness of the landlords, which continues to make these libraries operate illegally because it gives them commercial benefits, but also because the corrupt government officials, mostly the MCD, are trying to make this happen because they understand that this is wrong. They understand the commercial activities which are occurring by operating these illegal libraries is wrong, but they are making it happen because perhaps there is some corruption at place, and thereby you are seeing that how there is apprehension, fear and also anger among students, because they feel that for 1 or 2 days this issue is going to be there, but what is going to happen after 1 or 2 days more? And now following this, we have also traveled around the area. We will also probe about how not only Rajendra Nagar, but how areas in and around Rajendra Nagar has become a hub of operating such commercial activities illegally, thereby putting the lives of a number of students at risk. So yes, we are going to be continuing to keep eye on this matter, because these illegal activities, these illegal commercial activities have not been allowed to curtail for a long time. You see that this is happening for a long time, and thereby the fear, apprehension and anger continues to be among the students. Back to the studio. Piyush, do stay on with us as we also play out this next sequence. Senior Executive Editor Abhishek Kapoor, who spoke to some of the students who watched that tragedy unfold bit by bit in front of their eyes, and they spoke about their harrowing experience. Let's listen in. तो और एंट्री और एग्जिट का एक्सेस का क्या तरीका है? सर बहुत ही ख़राब तरीका है। एक स्टेयरकेस है, उससे आप ऐसे सीधे जाओगे पहले, फिर आप लेफ्ट लोगे, फिर लेफ्ट लोगे, फिर राइट लोगे, फिर लेफ्ट पे गेट है। वो भी ग्लास का गेट है। और सर जैसे कल की खबर है, कल मैं वहाँ पे मौजूद था, तो इन लोगों ने तुरंत लाइट बंद कर दी। जैसे पानी अंदर जाने लगा, लाइट बंद कर दी। सर अगर आप दिन के 12 बजे में जब पूरा सूरज की रोशनी हो, तब अगर आप लाइट बंद कर दो तो आदमी उसके अंदर डर जाएगा, क्योंकि वेंटिलेशन का कोई रास्ता ही नहीं है, ना कोई गेट है। जैसे मैंने बताया ना, इतना कंसील करके गेट बनाया हुआ है। तब आदमी तब घबरा जाएगा। तो जो बच्चे अंदर फंसे हुए थे, जब इन्होंने लाइट बंद कर दी और पानी आ रहा है, तो उसी पैनिक में डेथ हुई है। तो ये जो डेथ हुई है ना, इसका मेन जिम्मेदार जो है वो राउस IAS ही है। और दूसरे जिम्मेदार है ये MCD ऑफिशियल्स, जिनको पता था, उनको तो सर पता था, इंस्पेक्शंस भी होते हैं। इन्होंने NOC दी कि वहाँ पे स्टोरेज रूम बनेगा, लेकिन वहाँ पे चेयर्स लगे, सबने देखा। तो सर कैसे ये पॉसिबल है कि वो लाइब्रेरी चलती रही, वहाँ पे चेयर्स लगा दी? तो स्टूडेंट्स ने पहले कभी इस बारे में ध्यान दिलाया था? सर कई बार ध्यान दिलाया कि पानी ऊपर भरा रहता है, शूज गंदे हो जाते हैं, कपड़े गंदे हो जाते हैं, तो ये लोग ईंटें रख देते हैं या कोई स्लैब लगा देते हैं कि शूज गंदे ना हो, आदमी निकल जाए। वही पानी थोड़ा थोड़ा नीचे चला जाता है, तो ये लोग साफ सफाई कर देते हैं। लेकिन किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि इतना ज़्यादा पानी आ जाएगा। उम्मीद दूसरी की लाइट वाइट की डर रहता था, लेकिन इतनी भारी मात्रा में पानी आ जाएगा ये किसी ने नहीं सोचा था। तो रिपोर्ट्स ऐसी भी हैं कि कुछ स्टूडेंट्स ने कंप्लेन भी करी थी? हाँ जी सर, मेरे साथ का एक दोस्त है, उसने कंप्लेन की थी, 12 दिन पहले कंप्लेन की थी उसने।
और एमसीडी में कोई एक्शन नहीं लिया। आनंद पर्वत ऑफिस में अभी भी पेंडिंग पड़ी है, उसका सिर्फ 12 दिन पहले कंप्लेंट की 12 दिन पहले कंप्लेंट की थी एग्जैक्ट। और सर एक और बात आपको बताता हूँ, जिस दिन की ये घटना है, ये राउस वाले एक डीएनएस करके प्रोग्राम चलाते हैं जिसमें करंट अफेयर्स बताते हैं। तो जो टीचर क्लास ले रहे थे लाइव, आप यूट्यूब पे देखोगे, अभी डिलीट नहीं किया होगा उन्होंने तो दिख जाएगी, डाउनलोड कर रखी है हम लोगों ने। तो उसमें ये बोल रहे हैं टीचर कि इसको जल्दी जल्दी मैं निपटा देता हूँ, पानी आ रहा है, नहीं तो मैं घर नहीं जा पाऊंगा। ऐसा कोई वीडियो है? ऐसा वीडियो है सर, सर राउस आईएएस के टीचर फैकल्टी का वीडियो है खुद का। कितने दिन पहले का? सेम डे का सर। कितने बजे का है ये? ये सर करीब वही 6 बजे घटना घटी है, 6 बजे शुरू हुआ है पानी आना, उससे जस्ट पहले का। सर उनको सारी जानकारी थी राउस आईएएस वालों को, लेकिन सर जानबूझ के सर बताइए ऐसा किया है, क्या बीत रही है। मतलब आप स्टूडेंट अंदर पढ़ने गया है, बैठ के पढ़ते पढ़ते सर मौत हो जाए किसी की, इससे भयानक। वहाँ उस समय कितने लोग रहे होंगे अंदर? उस समय 30 से 35 लोग थे। और सब निकल आए? सब निकल रहे थे, लाइट बंद कर दी इन लोगों ने ना, एक तो लाइट बंद कर दी, तो जो निकल रहे थे उसमें कुछ पैनिक हो गए, पानी और बढ़ गया अचानक से 5 फीट बढ़ा। कुछ तैर लेते तो तैर के आए, तो एनडीआरएफ वालों ने जब निकाला है तो बहुतों को पानी निकाला है। टोटल 13 लोग अंदर ट्रैप हो गए थे, इनको एनडीआरएफ की मदद से। सर इसमें कमी थोड़ी अथॉरिटीज़ की भी रही है, हल्की सी, कि पहले दिल्ली पुलिस पहुंची वहाँ पे कांस्टेबल्स, तो वो लोग मिटिगेट जल्दी नहीं कर पाए, कहे कि बिजली फैल जाएगी या पानी बाहर निकालते, तो दिल्ली फायर सर्विस को बुला लिया। लेकिन फायर सर्विस वाले जब तक मोटर लाते तो पानी पूरा भर चुका, तो स्कूबा डाइवर्स आने में टाइम लग गया, क्योंकि वहाँ पे ड्राइवर्स की जरूरत थी। और कोर्स मटेरियल था सर, सब चेयर्स थी, तो सब डूब के ऊपर आ गई।